Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we are going to cover agriculture related MCQs from 550 economic questions. So, start करते हैं. First question is related to agriculture census. Consider the following statement regarding agriculture census. Statement first is saying that agriculture census is conducted quinquennially, that is at 5-year interval. Second statement is saying the first agriculture census was conducted in 1970-1971. Attempt. You guys please attempt. Agriculture census is conducted after 5 years. उसको हम बोलते हैं quinquennially. So this statement is correct. Second statement is the first agriculture census was conducted in 1970-1971. This statement is also correct. So answer for this question is C for Calcutta. Next question is on your screen. Please attempt yourself. Consider the following statement. Agriculture GVA at constant price has steadily increased in last 5 years. Agriculture GVA has increased in last 5 years at the constant price wala. Second statement is saying that agriculture GVA growth at constant price was higher than industry and service GVA growth in the COVID year 2020-2021. So choose the correct statement. First is again here correct. Agriculture GVA at constant price has steadily increased in the last 5 years. It has steadily increased. So it is a fact from economic survey that you guys has to remember. Second statement is saying that agriculture GVA growth was higher than industry and service growth in 2020-21. This is again correct statement. So answer for this question is C for Calcutta. Both the statements are true here. So agriculture GVA growth at constant price was around 3.3% in 2020-21, 3.3%. And below is given the contribution of agriculture and allied sector in real GDP growth rate. In 2020-21, it was 3%. Then again 2020-22, it is 3.30%. So this is agriculture GDP, and question was asking about agriculture GVA. Agriculture GVA has increased in the last 5 years, whereas agriculture GDP there is no trend in it. So it has first increased, then again decreased. For 2019-20, it was 4%, then again it has decreased. So next question, 402 questions. Attempt yourself. Statement first is saying that horticulture production has surpassed food grain production consistently in the last 10 years. So statement first is saying that horticulture production is more than food grain production in the last 5 years. Is it so? Yes, this is so. Horticulture production is more than it. The food production in the last 10 years. Horticulture production was around 330 million ton, whereas the food grain production was around 306 million ton. 306 million ton. The statement first is correct. Second statement is saying that India is largest producer of milk in the world.
This is again correct statement. India is the largest producer of milk in the world. Third statement, India is largest producer of wheat and rice. This is wrong. India is second largest producer of wheat, rice, as well as sugarcane. Sugarcane we are second. Fruits and vegetable. Fruits and vegetable. We are second in wheat, rice, sugarcane, fruits and vegetable. Second rank हमारी आती है. So answer for this question is 1 and 2. B for Bombay. B for Bombay is the answer. This is given in this slide. You can see whatever highs. India is largest producer of milk. Horticulture production more than 330 million ton, and food grain was 306 ton. We are second largest producer of rice, wheat, sugarcane, fruits and vegetable. 403rd question. Consider the following statement regarding agriculture trade. It is asking about agriculture trade. So India's agriculture trade statement first is saying India's agriculture trade has consistently been in surplus in the last 5 years. India's agriculture trade is in surplus in the last 5 years. क्या ऐसा है? सोचिए. Second statement is agriculture export in value term has steadily increased in the last 5 years. In value and in quantity, how is the relation? Do you know? The statement first is saying that India's agriculture trade has consistently been in surplus in the last 5 years. Yes, this is correct. This is correct. Second statement is agriculture export in value terms has steadily increased. No, it has not steadily increased. There is no relation. So answer for this question is A for Agra. Now see agriculture export and agriculture import trend. You can see from this graph. This is export, agriculture export, and this is agriculture import. So agriculture commodity import has increased. It has increased, and there is no relation here. Export has decreased. पहले first increased, then it is decreased. Next question is 404th question. Out of the following state, which state has maximum area under natural farming? Which state has maximum area under natural farming? Answer for this question is Andhra Pradesh. Natural farming Andhra Pradesh top करता है. Second is MP. First is Andhra Pradesh. Second is MP. Third is Chhattisgarh. Third is Chhattisgarh. Natural farming. This is given here again. For natural farming promotion, there is a scheme. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति program is a scheme of government of India that is promoting natural farming in India. Sikkim is first organic state of India. Sikkim is first organic state. Then question number 405. Which country is the largest exporter of jute? बताइए आप. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज बांग्लादेश. लार्जेस्ट इफ वी आर आस्किंग प्रोड्यूसर देन largest producer is India. Largest producer is India. Second largest producer is Bangladesh. Third is China. In India, West Bengal is the largest producer. India में West Bengal is the largest producer of jute. So आपको ये information पता होनी चाहिए. और जूट को गोल्डन फाइबर, जूट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर. Golden fiber.
कॉटन, आफ्टर कॉटन इट इज सेकेंड ग्रोन, कॉटन के बाद में ये सेकेंड ग्रोन फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, असम इज आल्सो प्रोड्यूसिंग, देन बंगाल, बिहार इज आल्सो प्रोड्यूसिंग अमाउंट इन सम अमाउंट। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल that is producing. This is given here, you can see, pause and watch it. Question number 406, consider the following statement regarding jute. Again jute, National Jute Board, this question is about National Jute Board. National Jute Board has been constituted under an act of parliament to promote jute production in it and its product. So this statement is actually correct. National Jute Board has been formed in the country in 2008 through Jute Board Act. Jute Board is coming under Ministry of Textile. It is under Ministry of Textile, not Ministry of Agriculture. National Jute Board is under Ministry of Textile. Second statement is that governments mandates packaging of commodities in packaging material through Jute Packaging Material Act 1987. This is again correct. The government has asked for 100% packing of food grain to be in jute bags and 20% of sugar packing in jute bags from 2021-22. 100% of wheat and 20% of sugar cane will be made compulsory packed in jute bags. So this, in the solution we have seen all the points. National Jute Board was established under Ministry of Textile. It is responsible for promotion of jute and jute products in India as well as abroad. Both. Jute Board is responsible for promotion of jute in India as well as both. It was established in Jute Board Act 2008 and government under the Jute Packaging Material Act 1987 has given those guidelines to package the food grain and sugar in jute bags. Next question is 407. Which of the following factors are taken into account by CACP for recommending MSP for agriculture crops? So CACP is the body which recommend करती है only. It is a recommendatory body only. Which recommend MSP to the government and then government decide करती है. So CACP takes into account which of the following while deciding the MSP for agriculture crops. We all know that MSP is decided by the government for 22 crops. So MSP taken first, it take into demand and supply. Yes, demand and supply जितनी ज़्यादा होगी या कम होगी उसको अकाउंट में लेती है गवर्नमेंट. ये CACP अकाउंट में लेता है. प्राइस ट्रेंड को भी देखती है. प्राइस ट्रेंड इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. वहीं से तो डिमांड एंड सप्लाई का पता चलेगा. टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. यस, ये भी अकाउंट में लेती है. इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, दो क्रॉप्स के बीच में जो प्राइस है उनका गैप है उसको भी अकाउंट में लेती है कमेटी. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना फार्मर्स को कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने का, उसको भी ये अकाउंट में लेती है. likely implication of MSP on the consumers, तो इसका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको भी अकाउंट में लेती है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी फॉर दिल्ली. While recommending MSP for the crops, CACP take into account all these factors: demand and supply, price in the domestic as well as international market, term of trade between the agriculture as well as non-agriculture sector,
inter-crop price parity, cost of production of the crop, and likely implication of MSP on the consumers. All these factors are taken into account by CACP, that is Commission for Agriculture, cost and price. Next question, we all has seen this. The next question is 408. Government declare MSP which is at least 50% over the cost of production. तो दिस कॉस्ट इंक्लूड, ये कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करता है? तो गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, वो डिक्लेयर करती है किसका? दैट इज डिक्लेयर्ड फॉर A2 प्लस एफएल, A2 प्लस एफएल, इसका 50% प्लस A2 प्लस एफएल, इतना होना चाहिए इसका 50% प्लस A2 प्लस एफएल। तो इतना जो है वो क्या होता है? एमएसपी होता है। एमएसपी के लिए एक कमेटी थी, स्वामीनाथन कमीशन भी था एमएसपी के लिए। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एमएसपी विच इज एट 50% ऑफ ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट, ये कॉस्ट बतानी है, इसमें से आपको कौन कौन सी इंक्लूड की गई है, यानी कि इसमें से आपको बताना है A2 प्लस एफएल का हिस्सा क्या क्या है। दिस कॉस्ट इंक्लूड रेंटल पेड आउट कॉस्ट ऑन द रेंटल्स, क्या ये इंक्लूड करती है? एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट ऑन द रेंटल्स। यस, ये A2 क्या होता है? A2 इज एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट ऑन द रेंटल इज A2। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वही A2 होती है। एक्चुअल कॉस्ट इज नकर्ड बाय द फार्मर्स और पेड बाय द फार्मर्स इज A2। A2, for example, a farmer is cultivating on his own land, own piece of land, ठीक, he is cultivating, for example, mustard. Then he is purchasing seeds, then fertilizer, then or other all the input cost like irrigation tech, irrigation, fuel, all these costs he is paying, plus he is doing family, his labor, his own labor, his own labor or his family labor, they are also working in this field. So the cost A2 includes only the cost which is paid, actually paid by the farmer, that is this cost, excluding his own labor and his family labor. It is not counted in A2, it is counted in A2 plus FL. A2 is basically फार्मर्स ने कितना पैसा अपनी जेब से दिया है, एक्चुअल में कितना दिया है, उसके खुद के काम का नहीं है और उसके फैमिली के जो काम का नहीं है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। A2 प्लस एफएल में दोनों काउंट करेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट फार्मर दे रहा है प्लस उसमें एफएल में। और C2 में हम क्या करते हैं कि फार्मर्स की जो अपनी जमीन है उसका भी तो कुछ किराया होगा, उसका भी तो रेंट उसको मिलना चाहिए उस जमीन का, तो वो हम C2 में इंक्लूड करते हैं। तो rental foregone on our land is not included in A2 plus FL. It is not paid to the farmers. It is not included in MSP. Depreciation on agriculture implement, it is included. It is included. एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यदि कि उसका ट्रैक्टर खराब हो जाएगा तो उसके अंदर जो मशीनरी खराब है हो गई है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट ऑन द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पोस्ट स्टोरेज, पोस्ट स्टोरेज उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको नहीं, पोस्ट स्टोरेज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो पोस्ट हार्वेस्ट का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो एक्चुअल रेंट पेड आउट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन इट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी फॉर Delhi. So we have seen A2 is the actual average of actual paid out cost by the farmer. Then A2 plus FL we have seen that it is covers the actual paid out cost plus imputed value of family labor, यानी कि family labor उसमें काउंट करा ली गई है। थर्ड इज C2,
C2 is more comprehensive. Farmers are demanding C2. So C2 is more comprehensive and it includes the our land, rent on our land and fixed capital asset on top of A2 plus AFL. So government is giving at least 50% above the A2 plus AFL cost. A2 plus AFL. So A2 includes the cost on equipment purchase. Yes, A2 include करती है. A2 include the depreciation of equipment. Yes, it is also included in it. Post harvest activity are not included in the cost. They are not included. 409th question is related to minor forest produced. इसके बारे में आपको बताना है, बताइए. Consider the following statement regarding the procurement of minor forest produce at MSP, minimum spot price. First statement is MSP is revised. MSP for minor forest produce is revised after every 3 years by Ministry of Tribal Affairs. तो माइनर फॉरेस्ट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनर ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सो उसका जो एमएसपी है वो हर 3 साल बाद रिवाइज किया जाता है. दिस इज करेक्ट. सेकेंड इज द एमएसपी डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ रेफरेंस एमएसपी एंड स्टेट हैव द फ्रीडम टू चेंज इट. यस, इसका जो एमएसपी होता है वो स्टेट हैज फ्रीडम, इसमें स्टेट को फ्रीडम दी गई है कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो घटा सकते हैं. 10% का उनको लिए दिया गया है, या 10% इंक्रीज कर सकते हैं एमएसपी, या फिर 10% घटा सकते हैं. और इसके लिए जो ट्राइफेड है दैट इज द नोडल एजेंसी, दैट इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. आंसर फॉर डी, आंसर इज डी. सो देयर इज अ स्कीम mechanism for, this is a scheme of the government, mechanism for marketing of minor forest produce through minimum spot price and development of value chain for minor forest produce. It is a centrally sponsored scheme है. तो इसके nodal agency is TRIFED that act as a nodal agency for it, and जो price MSP for it is revised after 3 years. MSP for minor forest produce is revised after 3 years by Ministry of Tribal Affairs. Here Ministry of Agriculture is not coming in the picture. So it is a central sponsor scheme है which is working on 75:25 basis. Center is giving 75% fund, 25% is given by state. For procurement, infrastructure creation, storage creation, these all activities are done in there. In this scheme is to provide the fair price to minor forest gatherer and enhance their income to ensure sustainable harvesting of minor forest produce. तो 49 आइटम हैज बीन इंक्लूडेड इन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो एमएसपी है उसके लिए 49 आइटम इंक्लूड किए गए हैं. सो ट्राइफेड इज कब एस्टेब्लिश की गई थी? ट्राइफेड वाज एस्टेब्लिश इन 1987 अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984. इसका ड्यूअल रोल है, दैट इज एज ए डेवलपर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर. ये सर्विस प्रोवाइडर भी देता है, थ्रू फार्मर्स की ट्रेनिंग भी करता है, ट्राइबल फार्मर होते हैं उनकी ट्रेनिंग करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करता है, और ये ऐसा करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016. Which of the following statement are true regarding it? First statement is the Model Act allows consolidation of farmland. Is it true? This is true. This act allows for consolidation of the farmland. This is true. Second, duration of the lease and consideration amount is regulated by the government. Duration of lease, मेरी जमीन मुझे लीज पे देनी है तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? तो इट इज बिटवीन ऑनर एंड द कंपनी दैट इज वांट टू, जो लीज पे लेना चाहती है, उन दोनों के बीच वो लोग डिसाइड करेंगे ना ड्यूरेशन ऑफ लीज. सो इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. द मॉडल एक्ट डज नॉट अलाउ लीजिंग ऑफ द लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री पर्पज. ये गलत है. 5 साल के लिए एनिमल हस्बेंड्री
या अलाइड एक्टिविटीज है उनके लिए लैंड को लीज पे लिया जा सकता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए फॉर आगरा, वन ओनली इज करेक्ट। तो नीति आयोग ने ये एक्ट बनाया था। एक्ट का नाम हम दोबारा देख देते हैं, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। लैंड लीजिंग को प्रमोट करने के लिए 2016 में नीति आयोग ने इसको मॉडल एक्ट बनाया था। तो एग्रीकल्चर इज इन स्टेट लिस्ट, सो सम ऑफ द पॉइंट्स इज दिस विल हेल्प इन द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड। सो वी आर हैविंग लैंड फ्रेगमेंटेड, एक टुकड़ा हमारा जमीन का किधर ही है, एक किधर ही है, एक नॉर्थ में है दूसरा साउथ में है, तो इट अलाउज फॉर द लैंड कंसोलिडेशन टू द फार्मर्स। Duration of lease is decided between the owner and the tenant. There is no selling on the amount of land that can be leased out. So livestock activities and animal husbandry are given 5 year के लिए, they are allowed maximum period of 5 year they can be taken for lease. Then it allows for quicker litigation process in this act. Next question is 411. This question is regarding the electronic NAM, e-NAM or electronic national agriculture market. The statement first is it will ensure one nation one price for agriculture commodities of the crop for the people. For people, this is wrong. It cannot ensure one nation one price. How it is wrong? That we will see. It is wrong. It cannot ensure because इसके अंदर क्या होता है, ई-नेम के अंदर, ई-नेम फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है, फार्मर्स ने मान ले ग्रेन वीट प्रोड्यूस किया, सो फार्मर विल टेक हिज वीट टू एपीएमसी मंडी, फिजिकली एपीएमसी मंडी। Here in APMC Mandi, there is infrastructure, there is digital infrastructure, जिसके थ्रू फार्मर्स की यहाँ पे उस फार्मर्स पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इज अलाउड यहाँ पे, यानी कि इसमें पूरे देश के कहीं से भी कोई भी उस प्रोडक्ट के लिए बोली लगा सकता है। परंतु फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हरियाणा से कोई वीट बेच रहा है, हरियाणा से कोई फार्मर वीट बेच रहा है और तमिलनाडु का कोई ट्रेडर है वो इसको खरीद रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ट्रेडर को झेलनी पड़ेगी। अब वो उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा तो वन नेशन वन प्राइस तो होगा नहीं। हरियाणा से वो वीट गया तमिलनाडु में, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो भैया उसमें ऐड होगी, तो वन नेशन वन प्राइस तो इससे इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, फार्मर कैन सेल, सेकंड इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, फार्मर को फिजिकली अपना प्रोडक्ट है वो एपीएमसी मंडी में ले जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग, क्या कह रहा है, फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू ई-नेम सिटिंग एट देयर होम्स विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द फिजिकल एपीएमसी। यही बात मैं बोल रहा था, वो कैन नॉट, उनको फिजिकल एपीएमसी मंडी में ले जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑल इस आंसर इज डी, neither one nor two is correct here. Answer is D for Delhi. Then in APMC we have seen this, it will help the farmers to get the same price across the different mandis. फार्मर के लिए सेम प्राइस मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने देखा ई-नेम पे किस पे लगेगा, ट्रेडर पे। ये एपीएमसी को इलेक्ट्रॉनिक लेके जाने की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे डिस्कवर करने की बात करिए प्राइस। देन यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका प्रोडक्ट है ना, वो अपने घर पे बैठे बैठे क्या है, उनका जो कहीं पे स्टोर किया हुआ है वेयर हाउस में, उनका प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वहां से उनको एक वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है, उसका यूज करते हुए वो लोग ट्रेड कर सकते हैं कहीं से भी। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। ई-नेम को कर्नाटका गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, रेम्स, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कैन ट्रेड देयर प्रोड्यूस ऑन ई-नेम, वो अपने घर बैठे से अब बैठे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट, उनको जरूरत नहीं है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं होगी
ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट इन मंडी। परंतु फार्मर्स को लेके आने की जरूरत है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होगी। और फार्मर्स जिनका स्टॉक है वेयर हाउस में, उनको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, यानी कि उस वेयर हाउस में कितना आपने स्टोर किया है उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी, उसका यूज करते हुए वो लोग ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पे फिजिकली वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जिसका स्टोर है वेयर हाउस में, नॉर्मल फार्मर को लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 412 रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया। तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट रेगुलेट द ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया, दिस इज करेक्ट, इट रेगुलेट द ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया। FSSAI रेगुलेट करती है। एनी फूड टू बी सोल्ड एज ऑर्गेनिक इन इंडिया मस्ट बी सर्टिफाइड थ्रू नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन में। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज जैविक भारत इज लोगो डेवलप्ड बाय FSSAI फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जाएगा उसको एक जैविक भारत का लोगो दिया जाएगा, जो कि डेवलप किया है FSSAI ने। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 and 3, दैट इज C फॉर कलकत्ता इज आंसर C। अब देखते हैं क्यों। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन लेके आई थी 2017 के अंदर, जिसके अंदर रेगुलेट स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रेगुलेट करना, ठीक। तो वहां से वो सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देखेगी। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर दो तरह से सर्टिफाइड किए जा सकते हैं, दो स्कीम्स हैं उसके अंदर इसको सर्टिफाई किया जाएगा। पहला तो है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके अंदर सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जाएगा प्रोडक्ट का, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ किया गया है इसके अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये स्कीम आती है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। ये केवल ये डोमेस्टिक के लिए है, डोमेस्टिक मार्केट में हमें बेचने के लिए हम सेल्फ सर्टिफाई करके इसे बेच सकते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से। सेल्फ सर्टिफाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बोल सकते हैं कि मेरी सब्जी है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, तो मैं अपना इंडिया के मार्केट में तो बेच सकता हूँ। जबकि मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो फॉरेन करना है, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, मतलब यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करना है, तो मेरे को थर्ड पार्टी से इसको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड करना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के लिए वो स्कीम है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। उसके अंदर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट करती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक है या नहीं। तो ये आती है स्कीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसके जो मेन बॉडी है कॉमर्स, अपीडा भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है इसको जो है, और नेशनल NAB भी इसी के अंदर आती है। सो हमने देख लिया कि PGS जो पार्टिसिपेटरी गारंटी इंडिया स्कीम इंडिया थी वो इंडिया के लिए ही है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है कृषि विज्ञान के अंदर से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृषि विज्ञान के अंदर आज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कृषि विज्ञान के अंदर आर कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। कृषि विज्ञान के अंदर आर सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इट इज कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टू तो अपने आप गलत हो जाएगा, फिर टू अपने आप गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जरा देखते हैं, ठीक है। सो कृषि विज्ञान के अंदर दे आर कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। सेकंड स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, सेकंड में दिया हुआ है कि दे आर ज्वाइंटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज रॉन्ग। सो केवीके कृषि विज्ञान के अंदर है, दे वर्क एज ए नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर की तरह काम करते हैं, जो कि फार्मर्स को या प्राइवेट जो भी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको नॉलेज डिसेमिनेशन का काम करते हैं। दे आल्सो एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर फॉर फार्मर्स, दिस इज अगेन करेक्ट। केवीके प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाते हैं टू मेक इट अवेलेबल टू द फार्मर्स, यानी कि वो सीड ग्रो करते हैं, सीड की क्वालिटीज हैं
वो ग्रो करते हैं केवीकेज। सो दिस इज अगेन करेक्ट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। कृषि विज्ञान केंद्र मोर देन 600 आ रहे हैं इन इंडिया। तो कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम इज 100% फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दीज कृषि विज्ञान केंद्र आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का ये हिस्सा है और ये नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर की तरह काम करते हैं फॉर पब्लिक, प्राइवेट एंड वॉलेंट्री सेक्टर। ये क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सीड है, प्लांटिंग मटेरियल है, बायो एजेंट्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, ये सारा ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प करता है। अलग अलग तरीके से प्रतीक होते रहते हैं, ये लोग इनोवेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इट। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर लीगल एंटिटी। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी भी हो सकती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है और एक लीगल एंटिटी भी हो सकती है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसके मेंबर्स है ना, वही उसको कंट्रोल करते हैं, उसके मेंबर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फार्मर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक कंपनी बना ली। कंपनी भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है और एनी अदर लीगल एंटिटी। ठीक, तो ये फार्मर्स की एंटिटी होगी जिसमें फार्मर्स का हिस्सा होगा, शेयर होल्डिंग होगी और उसको कंट्रोल करेंगे वो लोग मिलके ही, वो लोग अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर्स वगैरह इसके वही अपॉइंट करेंगे, फिर इससे बात करेगी, वो लोग इसको काम को देखेंगे। दैन सेकंड स्टेटमेंट इज इट शुड प्रोवाइड शेयरिंग और बेनिफिट प्रॉफिट टू द फार्मर्स। इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स के जो मेंबर है उनमें शेयर होगा। दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड इज ओनरशिप कंट्रोल इज ऑलवेज विद द फार्मर्स। दिस इज अगेन करेक्ट, हमने देख लिया है। फोर्थ स्टेटमेंट इज NABARD इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्रमोशन ऑफ FPOs। सो NABARD इज प्रोवाइडिंग एक्चुअली। आंसर इज D for Delhi. All of them are correct. So NABARD is supporting the farmer producer organization. So farmer producer organization क्या होता है वो हम देख चुके हैं। Ownership control is always with the farmers and small farmer agri business consortium FAC और NABARD दोनों इसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, वो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट बनाना चाहती है। 415 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है फिशिंग कंट्रीब्यूट अराउंड 1% इन ओवरऑल GDP। तो फिशिंग कंट्रीब्यूट करती है हमारी ओवरऑल GDP का 1%। दिस इज करेक्ट। लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करती है, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट अराउंड 5% इन ओवरऑल GDP। ओवरऑल GDP में कंट्रीब्यूट करती है 5%। दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर फॉर दिस इज C फॉर कैलकाटा। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 17% के करीब है, जिसमें से 1% फिशिंग का हो गया, 5% लाइव स्टॉक का हो गया, देन क्रॉप्स का 9.5% है इसमें से, एंड देन फॉरेस्ट्री अराउंड 1% ऑफ द GDP इज कंट्रीब्यूटेड बाय फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। So, statement first is the breeder of new varieties will decide the royalty। तो इसके अंदर ब्रीडर होता है जो नई वैरायटी डेवलप करता है, क्या वो रॉयल्टी डिसाइड करेगा? कोई जैसे कि प्राइवेट कंपनी बन गई, उसने नया बीज बनाया, तो क्या वो उसको रॉयल्टी मिलेगी? वो कौन डिसाइड करेगा? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, ये थोड़ी डिसाइड करेगा ब्रीडर। ये तो गलत हो गया। सेकंड के अंदर है द फार्मर इज अलाउड टू सेल हिज unbranded farm produced including seed of variety produced under this। तो this is correct। तो फार्मर्स उनका जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं विदाउट ए ब्रांड नेम नहीं देके, बिना ब्रांडिंग के उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड नेम नहीं दे सकते उसको। आंसर इज B फॉर बॉम्बे, 2 ओनली। सो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एक्ट 2001 के अंदर लाया गया था टू प्रोटेक्ट दी प्लांट वेराइटीज। तो इससे प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है उसको इंसेंटिव रहेगा, उसको रॉयल्टी मिलेगी, तो उसके लिए बेनिफिट होगा, उसको पैसा मिल रहा है ताकि वो नई वेराइटी डेवलप करे। इसके अंदर एक PPAR अथॉरिटी बनाई गई है जो ये काम करती है, जो इसकी रॉयल्टी को डिसाइड करती है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी अथॉरिटी वो डिसाइड करती है रॉयल्टी को, जो गवर्नमेंट बेड बॉडी है।
बाकी फार्मर्स कैन आर एंटाइटल टू यूज, सो, ग्रो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर, उनके प्रोड्यूस को हमने देख लिया, वो सब कर सकते हैं फार्मर्स। देन अगला क्वेश्चन है विच इज रिगार्डिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल जीन फंड। नेशनल जीन फंड, नेशनल जीन फंड आप अटेम्प्ट कीजिए, ओके प्लीज। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। क्या ये एस्टेब्लिश हुआ है इसके अंदर? ये स्टेटमेंट सही है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 है, उसके अंदर एक नेशनल जीन फंड बनाया गया है, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? नेशनल जीन फंड है वो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर बनाया गया है। इट इज फॉर्मुलेटेड अंडर इट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमने देख लिया कि ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज के अंदर बनाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, इट विल रिसीव द बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द ब्रीडर। सो ब्रीडर से जो बेनिफिट शेयरिंग आएगा वो इस फंड के अंदर जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 and 3, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के अंदर सेक्शन 45 के अंदर एक नेशनल जीन फंड बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? तो ब्रीडर विल हैव टू पे द रॉयल्टी विच विल गो इन दी, ब्रीडर रॉयल्टी पे करता है, वो इसमें नेशनल जीन फंड में जाती है। मार्केट में कुछ कोई कंपनी बीज लेके आई, वो कुछ रॉयल्टी पे करती है बेचने के लिए, वो सारा इसमें जाता है। इफ समवन क्लेम दैट, यदि कोई भी क्लेम कर ले कि उसका जेनेटिक मटेरियल उससे आया है तो उसको भी हिस्सा मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? नेशनल जीन फंड से मिलता है। इफ समवन गिव ए क्लेम दैट जेनेटिक मटेरियल possessed by him was used in the development of the new seed variety by the breeder, then the claimant will get the benefit sharing from the national gene fund. 418 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। Is FCI store the food grain procured for the central pool in the following? तो ये कहता है कि FCI जो फूड ग्रेन प्रोक्योर करती है वो किस में स्टोर करती है? FCI के अवन गोदाम में, यस, उसके अपने FCI के अपने गोडाउन है। सेकंड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोडाउन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग के कॉर्पोरेशन है, उसके भी गोडाउन में ये स्टोर करती है, CWC के गोडाउन में, यस। स्टेट की जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उनके गोडाउन में भी ये स्टोर करती है, और प्राइवेट सेक्टर से जो हायर है यानी कि अडानी के जो गोडाउन है उनमें भी स्टोर किया जा रहा है, FCI स्टोर करिए भी। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले सब में इसमें स्टोर करती है FCI, ठीक। 419 क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओपन मार्केट सेल स्कीम। ये किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ओपन मार्केट सेल स्कीम? अटेम्प्ट कीजिए। इट इज डन बाय द RBI टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये गलत है। इट इज डन बाय FCI टू सेल एक्सेस स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। FCI का जो एक्सेस स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, उसको बेचने के लिए वो लोग ओपन मार्केट सेल स्कीम लाते हैं। जैसे कि किसी फूड ग्रेन का दाल का प्राइस इंक्रीज हो गया, 200 रुपये केजी हो गया, उसको कम प्राइस को कम करने के लिए वो लोग उन लोगों ने FCI ने जितने भी स्टोर किया है दाल को, वो लोग मार्केट में ले आएंगे। तो इससे क्या है, उसका दाल का प्राइस कम हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, ओपन मार्केट सेल स्कीम इज ऑफ FCI। उसके अंदर व्हीट और राइस को बेचा जाता है डोमेस्टिक मार्केट्स में एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो प्राइस की जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए। आप पढ़ सकते हो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है सेंट्रल इश्यू प्राइस से। सेंट्रल इश्यू प्राइस ये क्या चीज है? अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल इश्यू प्राइस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द प्राइस एट विच द फूड ग्रेन्स आर इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या है? ये प्राइस है जिसपे फूड ग्रेन्स इशू किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज करेक्ट। इसको कौन फिक्स करता है? FCI थोड़ी फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, FCI नहीं करता है। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट सेंट्रल इश्यू प्राइस फॉर राइस एंड व्हीट इज 3 kg एंड 2 kg। तो राइस का 3 kg है, 3 रुपये पर केजी है, और व्हीट का
₹2 per kg. This is correct. Answer for this is 1 and 3rd C. सेंट्रल इश्यू प्राइस है वो हम इसमें देखते हैं. Issued by the it is the price at which the food grains are issued to the state government or union territory from the central pool at uniform price for distribution under the targeted public distribution scheme. इसको फिक्स कौन करता है? इट इज फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को फिक्स करती है प्राइस को. एंड 3 रुपए पर केजी राइस देती है, 2 रुपए पर केजी वीट देती है. इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2013 के अंदर ये बोला गया है. 1 रुपीज पर केजी कोरस ग्रेन दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट. ये किससे रिलेटेड है ये बताना है. पढ़ लीजिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी फॉर कलकत्ता, पेस्ट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स. इट इज रिलेटेड टू द पेस्ट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स. तो पेस्ट है, मान लो कि पेस्ट है, कोई पेस्ट लग गई किसी क्रॉप में, पेस्ट लग गई तो वो उसने क्रॉप को क्या किया? डैमेज किया. तो उससे जो क्या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ क्रॉप को. तो वो उसकी जो वैल्यू है वो यदि ज़्यादा हो जाए, नुकसान से जो वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इससे जो प्रोडक्शन होगा, तो उससे बोला जाता है कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड यूनिट लिमिट से क्रॉस कर चुका है ये. सो इट इज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट इज द इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल और एक्सटेंट ऑफ द क्रॉप डैमेज एट विच द वैल्यू ऑफ डैमेज क्रॉप एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पेस्ट. यानी कि उसको पेस्ट को कंट्रोल करने पे जितना खर्चा होगा वो उससे ज्यादा आ रहा है क्रॉप डैमेज से, तो क्या फायदा है उसको कंट्रोल करने का. उसको बोला जाता है कि पिंक बोलवर्म, जो एक इंसेक्ट है जिसने कॉटन को इंस्पेक्ट किया था, पिंक बोलवर्म कॉटन को सुंडी लग जाती है, तो वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका था महाराष्ट्र के अंदर 2019 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अंडर रिकवरी. द टर्म अंडर रिकवरी वाज सीन इन न्यूज. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये अंडर रिकवरी है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड है. इनका जो लॉस होता है, लॉस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग फ्यूल एट चीपर रेट टू द पब्लिक. तो पब्लिक को कम रेट पर फ्यूल देती है, तब उसको जो लॉस होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी बोलते हैं. ये टर्म है, बस वन लाइनर है, ये आएगा इतना ही. बी फॉर बॉम्बे आंसर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. यूरिया सब्सिडी 423. कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिया सब्सिडी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सब्सिडी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड. यूरिया सब्सिडी है वो फार्मर्स को डायरेक्टली नहीं दी जाती है, ये कंपनीज को दी जाती है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट per kg subsidy amount is fixed and does not change with market fluctuation. This is correct. Price of urea is regulated by the government. Yes, ये भी correct है. Answer for this is C for Calcutta. ये क्यों गलत हो गया फिर? C is answer. The price for subsidy of amount is fixed and it change करता है ये गलत है. Price of urea is regulated by the government. गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है. So the सब्सिडी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फर्टिलाइजर कंपनी अकाउंट अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ सेल्स. डायरेक्टली इसको दिया जाता है एंड पर केजी इसका 5.36 रुपये फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, 5.36 केजी पर केजी. सब्सिडी है वो कंपनी को जाती है और कंपनी उसका मैच करती है जो फार्मर्स का आधार कार्ड होता है, कितना बेच दिया उसने, तो उसको मैच करके उसको लाया जाता है ताकि वो उसका यूज़ नहीं किया जा सके, डाइवर्जन ऑफ इसका यूरिया का डाइवर्जन ना हो सके इंडस्ट्री के लिए. अगला क्वेश्चन है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से रिलेटेड है, तो अटेम्प्ट कीजिए. तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इट इज गिवन फॉर फर्स्ट. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किसके लिए दी जाती है? फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर के लिए भी दी जाती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Urea is not included in nutrient-based subsidy scheme. Second, it is given for urea. This is wrong statement. Third is the price of fertilizer
Third statement is the price of fertilizer under the nutrient based schemes are regulated by the government. No, they are not regulated by the government. वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं इसका सप्लाई। तो इसके अंदर जो फोर्थ स्टेटमेंट इज सब्सिडी इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट बेस इज पर केजी पे सब्सिडी जाती है ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। दिस इज करेक्ट। आंसर फॉर इज दिस इज 1 and 4, सी फॉर कलकत्ता। सी इसका आंसर है 1 and कलकत्ता। सो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो फॉस्फेटिक, पोटेशियम और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के लिए दी जाती है जिसमें यूरिया नहीं होता है, यूरिया के लिए नहीं दी जाती है और गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट फिक्सेस द सब्सिडी एनुअली कर दी जाती है पर केजी इन फर्टिलाइजर और ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करती है और उसका जो न्यूट्रिएंट बेस्ड वाली के अंदर मार्केट प्राइस है वो नहीं रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं है, इसको डीरेगुलेट कर दिया गया था 2010 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा। यूरिया वाला रेगुलेटेड है, यानी कि फार्मर्स को उतना ही देना पड़ता है, यूरिया का प्राइस देना पड़ता है उतना ही, बाकी सब्सिडी है वो यूरिया की गवर्नमेंट बाउंड करती है। अगेन यूरिया फर्टिलाइजर से रिलेटेड है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर देन 50% ऑफ यूरिया इज इंपोर्टेड इन द कंट्री। मोर देन 50% ऑफ यूरिया इज इंपोर्टेड इन द कंट्री। ये गलत बात है, ये गलत है, ये डेटा है 50% से नहीं है, कम है उससे। सेकेंड इज यूरिया प्राइसेस आर रेगुलेटेड फॉर द फार्मर्स। यूरिया प्राइसेस आर रेगुलेटेड फॉर द फार्मर्स, दिस इज करेक्ट। थर्ड इज मैंडेटरी प्रोडक्शन ऑफ 100% नीम कोटेड यूरिया। देयर इज मैंडेटरी प्रोडक्शन ऑफ नीम कोटेड यूरिया का मैंडेटरी प्रोडक्शन करना है, गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया है, दिस इज करेक्ट। नीम कोटेड यूरिया प्रोड्यूस करनी है, दिस इज करेक्ट। Then subsidy amount is, fourth statement is subsidy amount is transferred to the fertilizer plant based on every plant cost of production. No, this is transferred to the company को ट्रांसफर किया जाता है। आंसर फॉर दिस इज 425 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट गलत है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड फोर्थ इज रॉन्ग। देन बी फॉर बॉम्बे इज आंसर 2 and 3 ओनली। सो इसमें जो डेटा दिया हुआ है कि यूरिया का हम 25 मिलियन टन वाला है वो हम खुद से कर लेते हैं, 25 और 10 ही इंपोर्ट करते हैं। 35 में से हम क्या कर रहे हैं, मिलियन टन है वो 35 में से 10 इंपोर्ट करते हैं, तो 1/3 के करीब करते हैं, मोर देन 50% तो नहीं करते हैं। जबकि जो म्यूरेट ऑफ पोटाशियम होता है, जिसमें पोटाशियम होता है, उसमें हम लगभग 100% करते हैं इंपोर्ट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में लगभग 90% से ज़्यादा हम बना लेते हैं, इंपोर्ट 1% ही है, ठीक है। यूरिया प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए फिक्स होता है एंड इट डज नॉट चेंज ऑन द प्राइस ऑफ गैस, गैस के प्राइस पे चेंज नहीं होता है। 427 अरेंज द फॉलोइंग, इनमें आपको बताना है कि गवर्नमेंट कितनी कितनी सब्सिडी देती है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी देती है। दूसरे नंबर पे क्या है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फर्टिलाइजर, एंड तीसरे पे है पेट्रोलियम सब्सिडी। पेट्रोलियम सब्सिडी लगभग 6500 करोड़ के करीब ही है, लगभग इतनी है, 650 करोड़ 2021-20 के अंदर। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी देती है कितनी, 2.86 लाख करोड़। 2021-22 की बात करें तो 2.86 लाख करोड़ सब्सिडी दी थी, फूड सब्सिडी है। और फर्टिलाइजर्स के लिए कितनी थी, फर्टिलाइजर के लिए 1.4, तो फर्टिलाइजर के लिए 1.4 होगी, 1.4 लाख करोड़। फूड सब्सिडी इसका डबल है, 2.8 लाख करोड़ फर्टिलाइजर का डबल है फूड सब्सिडी। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। तो ये डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें। 427 केरोसिन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट स्टेट केरोसिन फ्रॉम पीडीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट स्टेट को अलोकेट करती है केरोसिन पीडीएस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी सब्सिडी। केरोसिन पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, ये बंद कर दी गई है। दिस इज करेक्ट अगेन, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी सब्सिडी टू दिस ऑन केरोसिन। सम स्टेट, थर्ड इज सम स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए केरोसिन फ्री स्टेट्स। कुछ एक स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको केरोसिन
फ्री स्टेट्स बांध दिया गया है। केरोसिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती है, केवल एक स्टेट है तमिलनाडु जो केरोसिन पे सब्सिडी देता है, बाकी कोई स्टेट सब्सिडी नहीं देता है। इसको मार्केट प्राइस पे ही केरोसिन को बेचा जाता है पीडीएस के अंडर। आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली। 11 स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है नो पीडीएस केरोसिन इज अलाउड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको अलोकेट करती है। अगला क्वेश्चन है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड मिनिमम इंपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस बिलो विच एक्सपोर्ट्स आर नॉट परमिटेड। तो ये इतना कम से कम इतना प्राइस आपको मिले इंटरनेशनल मार्केट में जिससे आप एक्सपोर्ट कर सके हो। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस बिलो विच एक्सपोर्ट्स आर नॉट परमिटेड। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज इम्पोज टू कर्ब द प्राइस राइज, यानी कि प्राइस राइज है, प्राइस बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको हमें इंक्रीज होने से बचाने के लिए इसको लाया जाता है टू प्रिवेंट इट डिस्ट्रप्शन इन द डोमेस्टिक सप्लाई। तो यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट, जैसे अभी वीट का दाम बढ़ गया तो वीट पे हम क्या करेंगे, प्राइस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देंगे, कितना से कम मिलेगा तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो इतना से कम मिलता है तो इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दिस इज करेक्ट। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इज द प्राइस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मिनिमम एमआईपी। तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इज द प्राइस बिलो विच इंपोर्ट्स आर नॉट अलाउड। दिस इज अगेन करेक्ट। तो एमआईपी इज इम्पोज टू कर्ब द इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है। दिस इज अगेन करेक्ट। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 429. So this minimum export or minimum price order restriction are imposed under, first statement is they are imposed under the Foreign Trade Development Act 1992। जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है, उनको फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट 1992 के अंदर इंपोज किया जाता है। दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, याद रखो 1992 वाली। देन फॉरेन ट्रेड एक्ट कैन बी यूज टू पुट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इस पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दिस इज अगेन करेक्ट। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट स्टेटमेंट। पॉज करो और स्टेटमेंट पढ़ लो, बता दिया मैंने। फिर आंसर फॉर दिस इज सी फॉर कलकत्ता। तो मिनिमम एक्सपोर्ट एमआईपी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस और दोनों फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के अंदर इसमें इम्पोज किया जाता है। उन क्वांटिटी को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कितनी आप बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट ने आलू पे, प्याज पे लगाया था कि 100 टन आप प्याज स्टोर कर सकते हो, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। देन 430वां क्वेश्चन है 430। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ व्हीट एंड राइस। सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीट और राइस की पॉलिसी है, तो उसके रिगार्डिंग है क्या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट है वो ओपन एंडेड प्रोक्योर करती है, जितना भी फार्मर्स व्हीट एंड राइस लेके आएगा गवर्नमेंट के पास, एफसीआई के पास, विद इन ए टाइम फ्रेम, तो उसको गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करती है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, अंडर दिस ऑल द व्हीट एंड राइस इज प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई। सारा नहीं है, उतना टाइम टेबल के अंदर लेके आ गए एपीएमसी के अंदर, तो उसको मान लिया जाता है, उसको प्रोक्योर करती है। सारा का सारा तो नहीं करेगी, 33 या 30% के करीब होता है वो। ये अंडर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। अंडर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी स्टेट्स प्रोक्योर व्हीट एंड राइस एंड डिस्ट्रीब्यूट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यस, दिस इज करेक्ट। तो 1 और 3 करेक्ट है। अभी आगे देखते हैं इसको। आंसर सी फॉर कलकत्ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई से के थ्रू ये प्रोक्योर करती है। एफसीआई के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, प्रोक्योर करती है व्हीट और राइस को, व्हीट एंड राइस। तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले कि एफसीआई खुद ही खरीदे, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक, तो इसके अंदर सेंट्रलाइज प्रोक्योर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि या तो एफसीआई प्रोक्योर कर ले खुद ही, या फिर स्टेट को बोले कि वो प्रोक्योर करके एफसीआई को दे दे, और एफसीआई फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे। एफसीआई फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे, इसमें प्रोक्योर करके वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। पहले एफसीआई के पास जाएगा, फिर एफसीआई से निकल के सेंट्रल इश्यू प्राइस पे, हमने देखा था सेंट्रल इश्यू प्राइस पे वो किसके पास आता है, इनके पास आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो
ये था सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिसके अंदर एफसीआई के पास जाएगा और एफसीआई स्टोर करेगा। दूसरा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या है, सेंटर बोलेगा स्टेट्स को कि भैया आप लोग प्रोक्योर कर लो और फिर आप ही बांट दो, तो पैसा जो लगेगा वो मैं दे दूंगा, पैसा लगेगा वो एफसीआई दे देगी स्टेट्स को। तो स्टेट्स इसके अंदर क्या है, प्रोक्योर करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं एनएफएसए के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो ये दो सिस्टम थे इसके अंदर, देखने वाली बात थी। तो सेंट्रलाइज के अंदर सारा का सारा इसके अंदर नहीं होता है, सेंट्रलाइज के अंदर सारा प्रोक्योर नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है, ठीक है। देन 431 दिस कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट से दिया हुआ है। सो कोई फार्मर जिसने मान लो वीट प्रोड्यूस किया है, आलू प्रोड्यूस किया है, ठीक है, आलू वो अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा वेयर हाउस में। वेयर हाउस में एक फैसिलिटी होती है, मतलब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। अभी मार्केट में कम प्राइस मिल रहा है, तो वो चाहता है कि मैं 2 महीने बाद बेचूं, तो फार्मर अपना आलू इस वेयर हाउस में लगा देगा, स्टोर कर देगा। तो फार्मर को एक रिसिप्ट मिल जाएगी इसके बदले में, कि उसने रिसिप्ट मिलता है यहाँ से कि उसने अपना आलू है वो मेरे गोडाउन में लगा दिया है, ठीक। तो ये जो रिसिप्ट है उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। और अभी नेगोशिएबल हो जाएगी, ये नेगोशिएबल कब हो जाएगी, जब ये जो वेयर हाउस है वो रजिस्टर्ड होगा एफसीआई के साथ। ये जब वेयर हाउस है वो रजिस्टर्ड हो, तब ये जो रिसिप्ट है वो नेगोशिएबल रिसिप्ट हो जाएगी। नेगोशिएबल का मतलब ये है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट का मतलब ये है कि ये जो रिसिप्ट है वो बेच देगा तो उसका ओनरशिप चेंज हो जाएगा, कि ये यहाँ पे आलू यहीं पड़ा रहेगा और फार्मर अपना प्रोडक्ट है वो, ये जो रिसिप्ट है इसका किसी और को दे देगा, बेच देगा, तो उसका प्रोडक्ट तो वहीं रहेगा, आलू तो वहीं रहेगा, जबकि उसको पैसा मिल जाएगा। तो उसको क्या है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सेकेंड, इट इज इशूड पर दी वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंदर इसको रिसिप्ट की गई है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो रिसिप्ट है वो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंदर इसको इशू किया जाता है, दिस इज करेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो बॉडी है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, दिस इज रॉन्ग, ये कॉमर्स के अंदर नहीं आती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है, दिस इज अंडर फूड प्रोसेसिंग। हम देखेंगे आगे इसको, फूड प्रोसेसिंग नहीं है, फूड कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आएगी। एफपीआई से रिलेटेड है ना, एफपीआई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये पब्लिक उसके अंदर आती है, तो ये गलत है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। तो ये वेयर हाउस रिसिप्ट है वो नेगोशिएबल होती है, यानी कि उनका ओनरशिप बेचा जा सकता है, दिस इज करेक्ट। दीज रिसिप्ट आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी यूज्ड, लोन लेने के लिए भी ये रिसिप्ट यूज किया जा सकता है, दिस इज अगेन करेक्ट। आंसर 1, 3 एंड 4, दिस इज सी फॉर कलकत्ता, इसका आंसर है। सो ये बॉडी है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंदर ये बॉडी लाई गई थी, उसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है, वो इसका काम करती है, वेयर हाउसेस को देखती है, ठीक है, इसके अंदर गोडाउन्स वगैरह सब कुछ यही देखती है। सो इसके अंदर जो है ये रजिस्टर किया जाता है, ये बॉडी रजिस्टर करती है वेयर हाउसेस को, और वो जो इसके अंदर वेयर हाउसेज होंगे वो लोग हैं वेयर हाउस रिसिप्ट इशू कर देंगे, वेयर हाउस रिसिप्ट देते हैं फार्मर्स को, और ये जो रिसिप्ट है उनका यूज करते हुए वो लोन ले सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो है ही उनके पास, तो यानी कि आलू है जो उसने लगाए थे, आलू की रिसिप्ट में क्या है वो बैंक से लोन ले सकता है, उसके पास वो एसेट है, एज इट कैन बी शोन एज एसेट, ठीक है, वहाँ पे उसको लोन लिया जा सकता है, दिस इज करेक्ट। देन 123 एग्रीकल्चर कम्युनिटीज इसने आइडेंटिफाई की थी WDRA ने, यानी कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एजेंसी ने, और 26 हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी, 123 एग्रीकल्चर कम्युनिटी, 26 हॉर्टिकल कम्युनिटी है जिनके लिए WNR यानी कि वेयर हाउस नेगोशिएबल रिसिप्ट है वो इशू किया जा सकता है, NWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इशू किया जा सकता है। कितनी 123 एग्रीकल्चर कम्युनिटी एंड 26 हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी के लिए। और जो ENWR होगी
इलेक्ट्रॉनिकली जो इशू किया जाएगी उसको ई नेम पे भी ट्रेड किया जा सकता है, ई नेम पे भी ट्रेड किया जा सकता है। ई नेम के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। सो दिस फंड इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस फंड इज अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। क्या ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता क्या है? यदि प्राइस यानी कि स्टेबलाइजेशन फंड, नाम से पता लगता है प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यदि मार्केट में टोमेटो का प्राइस जैसे कि इंक्रीज होता रहता है, कभी 60 रुपये हो जाता है, कभी 70 हो जाता है, कभी 20 रुपये, कभी 0 रुपये भी मिलता है फार्मर्स को, सड़क पे पड़े मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। उसको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो ये आता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एस्टेब्लिश किया गया था 2014-15 के अंदर, 2014-15 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता था, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो टॉप स्कीम है, यानी कि टॉप टोमेटो ऑनियन टॉप से टोटल कन्वर्ट कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उसका जो फंडिंग है वो इससे होगी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दिस फंड इज यूटिलाइज टू ग्रांट द वर्किंग कैपिटल लोन टू द सेंट्रल एजेंसीज। इसको लोन दिया जाता है सेंट्रल एजेंसी को। दिस इज करेक्ट। दिस स्कीम प्रमोट्स द डायरेक्ट परचेज ऑफ फार्मर प्रोड्यूस फ्रॉम दी, प्रमोट्स करती है डायरेक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फार्मर। यस दिस ये प्रोड्यूस करती है डायरेक्ट प्रोड्यूस को। 2 and 3 इज करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वाज एस्टेब्लिश इन 2014-15। नाउ इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है ये, ठीक है। सो वॉलेटिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एग्री हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट लाइक ओनियन टोमेटो, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को, ठीक। एंड इसके अंदर जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन इज यूज फॉर ग्रांटिंग इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया जाता है किसको? नाफेड एंड समान फार्मर एग्री कंजोर्टियम को फंड दिया जाता है इसके अंदर। और वहाँ से वो लोग हैं मार्केट में ये लोग इंटरवेंशन करते हैं जिससे प्राइस कंट्रोल को चेक किया जा सके। देन अगला जो क्वेश्चन है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1957 से रिलेटेड है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पुट स्टॉक लिमिट ऑन रिटेलर एंड होलसेलर अंडर दिस। तो स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पुट कर सकती है इसमें? लिमिट, होलसेलर और दोनों पे लिमिट लगा सकती है। दिस इज करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पे लिमिट लगा सकती है, होलसेलर और कितना आपको स्टॉक करोगे इसके अंदर। सेकंड है नाफेड एंड दी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड दीज कमोडिटीज एट चीपर प्राइस इन द मार्केट। दिस इज करेक्ट है। जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नाफेड उससे परचेज करेगी, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से लोन लेके, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से नाफेड को लोन लेके वो प्रोडक्ट को परचेज करेगी और मार्केट में बांट देगी जब राइज होगा प्राइस राइज, ठीक। तो ऐसा ही नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन करती है। नाफेड क्या है? ये कोऑपरेटिव है, फेडरेशन है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, उनका सबसे बड़ा जो अपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो नाफेड है। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, उनका जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है। दोनों ही मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर किए गए हैं एंड दीज आर रजिस्टर्ड अंडर, थर्ड स्टेटमेंट इज नाफेड एंड NCCF आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस इज D फॉर Delhi. So Essential Commodity Act provide for the regulation and control of the production, distribution, pricing of the commodity which are declared as essential, जो essential declare कर देगी। दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें लिमिट लगा सकती है। दोनों, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पुट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन, दोनों पे लगाए जा सकते हैं, होलसेल वाले पे भी और रिटेलर पे भी, दोनों पे लगाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट लगाया भी है, इसमें दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। देन नाफेड क्या बात एस्टेब्लिश की गई थी? नाफेड 1958 में एस्टेब्लिश की गई थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। नाफेड का हमने काम देख लिया है। तो नाफेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके मेंबर क्या होंगे? फार्मर्स ही होंगे और उनका जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो नाफेड इज ए नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को इम्प्लीमेंट करने की नोडल एजेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है।
ठीक है, इट इज बेसिकली ए सोसाइटी, मल्टी स्टेट सोसाइटी। सिमिलरली क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, वो भी सोसाइटी है, वो एस्टेब्लिश की गई थी 1965 में। नाफेड एस्टेब्लिश की गई थी 1958 में एप्सा आया था, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दोनों ही मल्टी रेस है। इसके ब्रांच ऑफिस है 29 इसके। नेशनल कंज्यूमर फेडरेशन है एनसीसीएफ, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही काम करती है। तो इसी के अंदर क्या आता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आता है। अगला क्वेश्चन है वो संपदा स्कीम से है। तो संपदा स्कीम, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज रॉन्ग। संपदा स्कीम इज फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर एग्रो प्रोसेसिंग ऑफ मरीन प्रोडक्ट, ऐसे से कोई है फुल फॉर्म। सो एग्रो प्रोसेसिंग ऑफ मरीन प्रोडक्ट है, तो एग्रो प्रोसेसिंग है तो यानी कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर आएगी ये। तो फिर स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंज्यूमर अफेयर, गलत है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर आती है। थर्ड स्टेटमेंट, इट विल फोकस ऑन मरीन एग्रो प्रोसेसिंग, दिस इज करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट, डी फॉर डी आंसर है इसका। तो दिस संपदा इज स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्लस्टर इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका काम क्या है कि वो जो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना है और मरीन जो प्रोड्यूस आ रहा है और मरीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका फूड प्रोसेसिंग को और अच्छा करके जो वेस्टेज है उसको कम से कम किया जाए। एग्री वेस्ट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एग्री वेस्ट को डिक्रीज करना है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत सारी इसके अंदर स्कीम इंक्लूड की गई है, जैसे कि मेगा फूड पार्क स्कीम है, इंटीग्रेटेड कोल्ड वैल्यू चेन स्कीम इसके अंदर आती है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्कीम्स इसके अंदर आती है, क्रिएशन ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, ऑपरेशन ग्रीन्स, सब इसके अंदर इंक्लूड की गई है। जिसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। ठीक, इसके अंदर ये क्या है, मरीन जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर उसी तरह से वो लोग मरीन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 435, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इट इज इंप्लीमेंटेड इन द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इंप्लीमेंटेड इन कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये बोला है ओनली कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, गलत स्टेटमेंट है, इसको ऑल दी स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेकंड, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसके अंदर कुछ परसेंटेज दे रही है गवर्नमेंट, यस दिस इज करेक्ट। देयर इज फोकस, इस स्कीम के अंदर हम फार्मर्स फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फोकस ऑन फॉर्मेशन ऑफ फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज करेक्ट। फोकस ऑन इंक्रीजिंग, statement fourth is focuses on increasing the contribution to agriculture GVA and export, this is again correct. Answer for this question is 2, 3, 4, B for Bombay. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज इंप्लीमेंटेड एज अम्ब्रेला स्कीम की तरह इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर आर दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसको इंक्लूड किया जाएगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लाई गई है। सो ब्लू रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को लाया गया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। जो फार्मिंग, जो फिशिंग हार्बर्स है, जैसे कि कोल्ड चेन है, फिश से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है मरीन फिशरीज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ावा दें। फिशरी का 1% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, हमने अभी देखा था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और डबलिंग द फिशरमैन की जो इनकम है उनको डेवलप करने पर फोकस है। इसके अंदर वो लोग सागर मित्र डेवलप करेंगे टू प्रोवाइड दी एक्सटेंसिव सर्विस को फार्मर्स को देने के लिए सागर मित्रा रजिस्टर किया जाएगा। ये लोग होंगे सागर मित्रा जो फार्मर्स फिशरमैन की हेल्प करेगा, ठीक है। और इसमें इंकरेज किया जाएगा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही क्या है, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है वो ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ऑपरेशन ग्रीन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। बताइए आप लोग, 436 क्वेश्चन, इज इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग? यो
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नाफेड विल इन ऑपरेशन ग्रीन को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नाफेड इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट इट। दिस इज करेक्ट। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर क्या है? टोमेटो ओनियन एंड प्राइस वाली जो स्कीम है, टॉप स्कीम है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ग्रीन है। इट फोकस ऑन बिल्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज एंड एग्री लॉजिस्टिक। पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, एग्रो लॉजिस्टिक है, स्टोर हाउसेज बनाए जाएंगे। दिस इज अगेन करेक्ट। ऑल ऑफ डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है ऑपरेशन ग्रीन। बजट 2018-19 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था ऑपरेशन ग्रीन ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? मिल्क का प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करने के लिए था। तो इसका ऑपरेशन ग्रीन का जो ओवरऑल फंड है वो कितना है? 500 करोड़ रुपए है इसका टोटल आउटले। इसके अंदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री लॉजिस्टिक को बढ़ावा देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है स्कीम बनाई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो ऑनियन पोटैटो, टॉप टोमेटो ऑनियन पोटैटो वैल्यू चेन। इनका जो हाईली वोलेटाइल कमोडिटी होती है मार्केट में, उनका प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। एंड नाफेड इसके दो कंपोनेंट है। शॉर्ट टर्म मेजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है? नाफेड है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से पैसे लेके यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइज करेगी। ठीक, ये नाफेड है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने देखा था, उससे लोन लेके ये प्राइस स्टेबलाइजेशन करेगी, खरीदेगी। और वो सेकंड है इसका जो कंपोनेंट है वो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट किया जाएगा। हमने वैल्यू चेन बनाएंगे, स्टोर हाउस बनाएंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक हम फूड स्टोरेज कर सकें टोमेटो ऑनियन पोटैटो, ताकि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज ना हो, धीरे धीरे उसको मार्केट में रिलीज किया जा सके। क्वालिटी प्रोडक्शन पे ध्यान होगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग एग्री लॉजिस्टिक बढ़ावा देंगे, इसी सब बातें करेंगे हम। ठीक है। देन किसान रेल भी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो किसान रेल पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 50% सब्सिडी देती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए, जो किसान रेल से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 50% की सब्सिडी देती है। ठीक है। एंड ऑपरेशन ग्रीन के अंदर अभी टोटल कर दिया गया था, टोटल टॉप से टोटल कर दिया गया था, तो इसके अंदर कितनी है? 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट इसको इंक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो अगेन ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड है। तो इट एम्स टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन, ये हमने अभी देखा है, सही है। इट प्रोवाइड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, ये भी हमने देख लिया अभी के अभी, सही है। इट इज डिमांड ड्रिवन एंड स्टेट विसेस आर स्टेट फंड्स आर नॉट, ये डिमांड ड्रिवन होगा और स्टेट वाइज फंड इसके अंदर नहीं एलोकेट किए जाएंगे, ये बात भी सही है। तो ये जो फंड होगा इसके अंदर 500 करोड़ रुपए का स्कीम है, उसके अंदर ये डिमांड ड्रिवन होगी और स्टेट वाइज फंड नहीं दिया जाएगा, जिस स्टेट की डिमांड आएगी उसी में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिस इज अगेन करेक्ट। ठीक, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। देन अगला है वो है 438 टेक्निकल टेक्सटाइल से है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है? कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए उसको बनाया जाता है, जैसे कि वो हीट अब्जॉर्वेंट हो सकती है। टेक्निकल टेक्सटाइल नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसी वैसी नहीं होती है, वो फंक्शन के लिए बनाई जाती है। ठीक है। नॉर्मली जो हम पहनते हैं कपड़ा वो किस लिए पहनते हैं? ताकि अच्छा लगे, उस काम के लिए नहीं है, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंस हो सकती है, जैसे फायरमैन के लिए कपड़े बना रहे हैं तो वो इस तरह से इसको बनाया जाएगा, या फिर वो ग्लो कर सकती है रात में, उस तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। तो इसका जो स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, एक मिशन लॉन्च किया गया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। उसका जो एम क्या है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट्स एम इज टू प्रमोट दी अवर डोमेस्टिक मार्केट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज करेक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको बढ़ावा देंगे ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट में टेक्निकल टेक्सटाइल का जो हमारा शेयर है वो बहुत कम है, 4 से 5% ही वर्ल्ड का शेयर है, परंतु उसका जो ग्रोथ रेट है हमारा इंडिया का वो कितना है? अराउंड 12% है। टेक्निकल टेक्सटाइल का जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 12% है, यानी कि मोर देन 10% पर ईयर इसकी ग्रोथ हो रही है टेक्निकल टेक्सटाइल की। वर्ल्ड में केवल 4 से 5% की ग्रोथ हो रही है। उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे फोकस रहेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो दिस इज करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट हियर। सो टेक्निकल टेक्सटाइल कोई भी फाइबर और यार्न होता है दैट इज अ पर्टिकुलर पर्पज और फिनिश वेल डिफाइंड एंड यूज होता है इसका। मैकेनिकल फंक्शन लाइक इसका जो टेक्निकल टेक्सटाइल रेजिलियंस हो सकता है, प्लायबिलिटी, टेनेसिटी, रेजिस्टेंस हो सकता है। देन दिस हीट ट्रांसफर के लिए हो सकता है, यूटिलिटी के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, इकोसिस्टम के लिए काम कर सकता है। देन मल्चिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, प्रोटेक्टिव के लिए है, तो यानी कि वो हमें एसिड रेस और जो केमिकल अटैक से बचा दे, अल्ट्रावायलेट रेज से बचा दे।
तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल इसके अंदर आता है, बाकी सब चीज़ें हम कर चुके हैं। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लगभग इसका जो आउटले है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया है 2020-21 के बजट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो आउटले है वो 1500 करोड़ का है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़। एंड इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन किया जाएगा। टारगेट इसका 15 से 20% एनुअल ग्रोथ रेट लेके जाना है, अभी 12% है। एक्सपोर्ट पे बढ़ावा, एक्सपोर्ट, R&D, देन टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाएगी, इसके बारे में एजुकेट किया जाएगा लोगों को। अगला क्वेश्चन है वो हमारा है वो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, इससे रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। आंसर चूज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मिशन हैज स्पेशल फोकस ऑन साउदर्न स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है, कोई साउदर्न स्टेट में इसमें फोकस नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इसको प्रमोट किया जाएगा। स्पेशल फोकस है इसमें नॉर्थ ईस्ट पे है और अंडमान एंड निकोबार पे इसमें नेशनल एडिबल मिशन पे स्पेशल फोकस रखा गया है। प्राइस एश्योरेंस दी जाएगी इसके अंदर, ऑयल पाम जो फार्मर्स को जो ऑयल फार्मर्स होंगे, ऑयल पाम के जो फार्मर होंगे उनको प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा कि आपका प्रोड्यूस है वो खरीदा जाएगा। दिस इज करेक्ट। अभी इंडिया क्या है 90% है जो एडिबल ऑयल है, ऑयल पाम वाला है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देयर इज स्पेशल फोकस ऑन असिस्टेंट ऑफ इनपुट एंड इन्वेस्टमेंट। तो इनपुट में गवर्नमेंट इसको एक्सटेंशन देगी, ठीक है। प्रेजेंटली 90% ऑफ द ऑयल क्रूड इज इम्पोर्टेड, दिस इज अगेन करेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4। फर्स्ट इज रॉन्ग। सो नवंबर 2021 में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा जो 90% इसके इम्पोर्ट करते हैं, ये इंक्रीज करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसको लाया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, एरिया को बढ़ावा दें। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम एरिया अंडर क्रॉप बढ़ा दें, नेट सोन एरिया, या फिर जो ग्रोस ऑन एरिया है उसको बढ़ा दें, या फिर सेकंड क्या कर सकते हैं हम, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें क्रॉप की। सो इसमें दोनों ही पे फोकस रहेगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एरिया डाइवर्सिटी, एरिया इंक्रीज पे। तो इसमें स्पेशल फोकस रखा गया है नॉर्थ ईस्ट अंडमान पे। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। एंड इसके दो कंपोनेंट है, मेजर फोकस है। फर्स्ट इज फॉर प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा फार्मर्स को थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि जितना भी वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा फार्मर्स को उगाने में जितना प्राइस का गैप आएगा उसको फंड किया जाएगा। एंड सेकेंड है उसको सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म में ये जो कल्टिवेशन है ऑयल पाम का वो सस्टेनेबल रहे। तो 98% हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो उसके अंदर फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो प्राइस है वो कम होगा, ठीक है, ऑयल का। अगला क्वेश्चन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ये इन्फॉर्मेशन है, याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। ऑयल पाम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है वो जैविक खेती पोर्टल से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैविक खेती पोर्टल। तो ये जैविक खेती पोर्टल क्या है, बेसिकली ई कॉमर्स है जहाँ पे नॉलेज और फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इट इज ई कॉमर्स एज वेल एज नॉलेज प्लेटफॉर्म, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है, दिस इज अगेन करेक्ट। तो थ्रू दिस पोर्टल बायर्स कैन अवेल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एट डोर स्टेप। तो जो बायर्स हैं वो इस पोर्टल से खरीद सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदते हैं तो हमारे डोर पे आ जाता है, उसी तरह से ये जैविक खेती पोर्टल एक जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेचने का गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। उसके अंदर हम इसको डोर स्टेप पे आ जाएगा, डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है तो मिडल मैन कट हो गया तो कम प्राइस मिलेगा, कम प्राइसेस पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज अगेन करेक्ट। 1, 2, 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो 442 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिगार्डिंग है। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आया था। तो अंडर द NFSA 2013 द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग चार्जेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम FCI डिपो टू द फेयर प्राइस शॉप इज बोर्न बाय। ये कह रहा है कि जो फ्रेश FCI से सेंट्रल इश्यू प्राइस पे क्या है, स्टेट को
कोई इशू कर दिया गया ग्रेन इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो विद इन द स्टेट, जैसे कि है विद इन राजस्थान है, राजस्थान के अंदर मूवमेंट होगा, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कौन बोन करेगा? इंट्रा राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से एफसीआई गोडाउन से लेके ये किस पे जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट की जो फेयर प्राइस शॉप है उस पे जाएगी। तो वहाँ से क्या है वो गरीबों को मिलेगी, ठीक। तो यहाँ से ये फेयर इश्यू प्राइस पे इसको मिल जाएगी। तो यहाँ से जो कॉस्ट है स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट, ये कौन बॉन्ड करेगा? ये सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बॉन्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट है वो शेयर की जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में, ज़्यादातर कॉस्ट सेंटर देता है इसके अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सारी कॉस्ट लगभग सेंटर देता है, ये शेयर की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इंट्रा स्टेट वाली है वो इसको ट्रांसफर किया जाएगी। एफसीआई डिपो से फेयर प्राइस शॉप तक का जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो शेयर किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देन अगला क्वेश्चन है वो 443, पीडीएस अंडर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीडीएस अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो विद इन स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो गलत हो गया ना, अभी हमने क्या देखा है? द कॉस्ट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज विद इन द स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज शेयर्ड बाय द बोथ। दिस इज करेक्ट। तो दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर शेयर करते हैं। अगला है फूड सब्सिडी बर्डन इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड शेयर। ये गलत है। मोस्टली द बर्डन इज शेयर्ड बिटवीन दी इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी, हमने देखा था 2.8 लाख करोड़ की, 2.86 लाख करोड़ की जो फूड सब्सिडी दे रही है, और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी कितनी थी? 1.4, इसका आधा। पेट्रोलियम सब्सिडी कितनी है? 6500 करोड़। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर द स्टॉक ऑफ दिस फूड ग्रेन फ्रॉम सेंट्रल प्राइस टू द स्टेट एट प्राइस 3 रुपीज kg एंड 2 kg वीट। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ट्रांसफर द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम सेंट्रल पुल टू स्टेट एट प्राइस ऑफ 3 रुपीज पर kg एंड 2 रुपीज पर kg। यानी कि जो सेंट्रल इश्यू प्राइस है वो राइस के लिए 3 रुपये पर kg है, और गवर्नमेंट वीट का क्या है? 2 रुपये पर kg है। वीट मिलता है 2 रुपये पर kg। 1 रुपये क्या मिलता है? 1 रुपये पर kg पे कोर्स ग्रेन मिलते हैं। ये जो सेंट्रल इश्यू प्राइस था ये इतना ही था, ठीक है। ये करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट गलत है एंड थर्ड गलत है। 2 and 4 आर सही, 2 and 4 आर सही। तो C फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, सी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, और जितना बता दिया उतना सही है, अनफ है। देन अगला है वो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है IMPDS से, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी के लिए लाया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए लाया गया था, जहाँ से भी कहीं पे भी माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो अपना राशन ले सकें, उसके लिए इसको पोर्टेबिलिटी के लिए लाया गया था, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज करेक्ट। सेकेंड है नेशनल लेवल डी डुप्लीकेशन ऑफ ऑल द राशन कार्ड। तो ये डी डुप्लीकेशन यानी कि बहुत सारे डुप्लीकेटेड राशन कार्ड होते हैं, उनको डी डुप्लीकेशन यानी कि उनको खत्म करने के लिए इसको लाया गया है। दिस इज अगेन करेक्ट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सेंटर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दिस इज करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सो इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट वाले को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज टू प्रोवाइड द नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, ठीक है। IMPDS का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था, एंड वो अपने कोटे का कहीं से भी जो फेयर प्राइस शॉप्स है वहाँ से अपना राशन उठा सके। आधार कार्ड और बायोमेट्रिक हेड ऑफ सेल उसको डिवाइस कर ऑथेंटिफिकेशन से देती है, और दीज आर वन ऑफ दी जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पढ़ चुके हैं, बाकी आप देख सकते हो इससे। अगला क्वेश्चन है कृषि मेघ क्या है? व्हाट इज कृषि मेघ? Which of the following statement are true regarding the recently launched कृषि मेघ? क्या है? तो कृषि मेघ क्या है? ये एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका जो सारा क्रॉप्स रिलेटेड डेटा है उसको स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कृषि मेघ। तो इट हैज़ बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक। तो ये जो अभी करंटली
जो डेटा सेंटर है वो दिल्ली में है, वो वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, हाई रिस्क जोन में आता है दिल्ली, तो उसको हैदराबाद में शिफ्ट किया गया है। ये कहाँ पे होगा? हैदराबाद। हैदराबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नाहरम हैदराबाद, यहाँ पे ये लोकेटेड होगा और इसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, तो ये इसको वर्ल्ड बैंक भी फंड कर रहा है। ये नेशनल एग्रीकल्चर ऑन हायर एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा होगा, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। हैदराबाद में होगा ये, करंटली अभी दिल्ली में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है कस्टम हायरिंग सेंटर से। कस्टम हायरिंग सेंटर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है? बेसिकली एक सेंटर होता है जहाँ पे एक काइंड ऑफ दुकान कह सकते हैं जहाँ से हायर कर सकें, क्या एग्रीकल्चर मशीनरी होती है, जैसे कि ट्रैक्टर के लिए जो बुझाई के लिए क्या मशीन चाहिए होती है, तो वो सारी मशीन्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, तो वहाँ से वो हायर कर सके। उसके लिए वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर बना रहे हैं। अब कस्टम हायरिंग सेंटर इंडिविजुअल खोल सकते हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इनसे वो क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हायर कर सकते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी। तो इसको नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये गवर्नमेंट प्रोग्राम लाई है। दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी, इस पर सब्सिडी दे रही है, हमने अभी देखा था, बताया था सब्सिडी दे रही है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। थर्ड है सीएचसी प्रोवाइड कॉस्टली इक्विपमेंट टू स्मॉल फार्मर्स ऑन रेंटल बेसिस, यहाँ पे ये रेंटल बेसिस पर रेंट लेके उसको इक्विपमेंट देगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो इसको एस्टेब्लिश किया गया है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको 12th प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था। एंड ये तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है, ताकि फार्मर्स की इनकम है वो 2022 तक डबल करने का टारगेट था, उसको बढ़ावा कर सके। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है रूरल लेवल एंटरप्रेन्योर को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को टू सेटअप दी CHCs। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा 46। सो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आते हैं? ये 4 सब मिशन भी हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांटिंग मटीरियल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, ये नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके अंदर एक सब मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसके अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो सर ने दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद देंगे।